Good morning everyone. So 10th क्लास की बच्चा पार्टी इंतजार कर रहे थे डे 5 के चैप्टर्स का. So here I am, Komal ma'am, helping you in preparing in 30 days. So today in day 5 session we will be doing the chapter from the diary of Annie Frank. Can you see this cute Annie sitting with her diary and writing? Okay. क्या सिखाएगा ये चैप्टर? और हम हमेशा किसी कोट या किसी प्रोवर्ब से स्टार्ट करते हैं. Fine, let me begin. You can't use up your creativity. The more you use, the more you have. Yes. It's all about a creativity of a 13-year-old teenager girl named Annie Frank. This chapter is about the horrors of Holocaust war, the horrors of Nazis' cruel rule. German dictator always thought that they are supreme and they are born to rule. How the Jewish people suffer under the dictatorship of this Nazi, a small part of that is exhibited in the chapter from the diary of Annie Frank. क्या है ये चैप्टर? बात क्या करता है? चैप्टर एक एक्सर्प्ट है. एक्सेप्ट का मतलब एक एक्सट्रैक्ट है. एनी फ्रैंक की पर्सनल डायरी का एक छोटा सा हिस्सा है ये चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक वॉज अ टीनेजर गर्ल, merely a 13 years old girl when she started writing a diary. क्यों लिखा मैम डायरी? She wrote diary because she did not have any true friends. Though she had a gang of friends, yet she did not believe in confiding into anyone. बहुत सारे दोस्त थे मगर हाँ वो शायद इतनी रिजर्व बच्ची थी कि that she never spoke to anyone. For fun, for entertainment, for amusement, she spoke to everyone. But उसके personal thought process उसने डायरी में लिखने शुरू किए. As ये डायरी उसे बर्थडे गिफ्ट में मिली थी. और इस डायरी में उसने वो सब चीजें रिकॉर्ड की कि हाउ and what they felt because they had to live in hiding. They lived in some of the secured place in his father's office, and that period of hiding was very, very problematic, very heartbreaking for her. This girl died she died somewhere when she was 15 years old, and it is of course a tender age. Had she not been the victim of Nazis' cruel rule, she could have become a good creative writer, and that's the chapter about the creativity of a girl. The chapter talks about her talkative trait, her reserved personality, her idea of starting writing in a diary, and about the role of her parents in her life, and disciplinarian teacher Mr. Keesing. About his habit of controlling the class, but it also talks about a teacher's right work of working on the welfare of students. Though he was a strict disciplinarian, but then he knew that when to award and when to punish a child. It is a strange experience of an honest girl, her honest way of telling her feeling, because she did not believe in any of the friends. ये चैप्टर आपको बड़ा ह्यूमरस लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं आपकी सोच और आपकी थॉट प्रोसेस से मेल खाता है. एनी फ्रैंक इस चैप्टर की इस एक्सट्रैक्ट की प्रोटैगनिस्ट है, एक 13 साल की ज्यूइश लड़की. और ये डायरी में बहुत कुछ तो उन्होंने अपने डिफिकल्ट टाइम्स के बारे में नहीं लिखा, बट इस चैप्टर में शी एक्चुअली टॉक्स अबाउट हर क्रिएटिविटी एज अ राइटर, उसके वो स्कूल फ्रेंड्स और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का वो स्ट्रेस जब एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला होता है.
हाँ पास हो जाओगे तुम, मैं, ये कौन? तो वो स्ट्रेस के बारे में बात करती है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में, हर लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर दादी माँ, दैट इज हर ग्रैनी, एंड देन अबाउट हर फैमिली. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वॉज हर डायरी, दैट शी नेम्ड हर डायरी एज किटी. क्यों उसको जरूरत पड़ी एक डायरी लिखने की? और इस चैप्टर के जरिए बता रही है अबाउट हर टीचर मिस्टर की सिंह, उनके डिसिप्लिनेरियन एटीट्यूड के बारे में, उनके चार्म के बारे में, बट देन ऑल इन ऑल हाउ ही थॉट अबाउट द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट. On this note, let's start the chapter from the diary of Annie Frank. I hope you're sharing the videos and helping others to gain knowledge. डायरी में लिखना बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस होता है, एनी कहती है. इसलिए नहीं, नॉट ओनली बिकॉज मैंने कभी कुछ लिखा नहीं, बट इसलिए कि मैं ये सोचती हूं कि क्या मुझ जैसी लड़की, एक 13 साल की टीनेजर लड़की की डायरी में क्या लिखा है ये पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड होगा? ठीक है, इट डजंट मैटर टू मी. लिखने का मन किया तो लिख दिया. एक अर्ज पैदा हुई एनी के दिल में, एंड शी स्टार्टेड राइटिंग. सी, व्हाई डू यू राइट अ डायरी? Because there are times where you cannot disclose what you feel in hearts of hearts. एनी का विश्वास था, और इनफैक्ट हम सब मानेंगे कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. हो सकता है कि एक पेपर आपकी वो सारी इच्छाओं को दबा ले जो कोई और ना कर पाए. सो शी सेज कि कई दिन ऐसे जाते थे, मैं बहुत डिप्रेस फील करती थी, घर पे बैठी रहती थी. सो फाइनली बहुत 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 सोचने के बाद आई स्टार्टेड राइटिंग इन अ डायरी. ऑफ कोर्स एक पेपर और एक कागजों की बनी एक नोटबुक. क्यों लिख रही है वो? शायद उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं है, प्रॉबेबली दोस्त बहुत हैं, बट उन दोस्तों पर शायद वो विश्वास नहीं कर सकती कि वो अपने पर्सनल थॉट प्रोसेस शेयर कर पाए. कहती है कि चलिए, ये तो हुई बात कि मैंने क्यों डायरी लिखना शुरू किया. मैं एक 13 साल की लड़की हूं, और आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि 13 साल की हूं. बहुत लोगों के आसपास है मेरे, बट फिर भी अकेली हूं. ऐसा नहीं फैमिली नहीं है, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं. मेरी 16 साल की बहन है जो मुझसे 3 साल बड़ी है. 30 ऐसे लोग जिन्हें मैं दोस्त कह पाऊं, बहुत सारे फ्रेंड्स, बट देन नोबडी वेरी क्लोज टू मी. वो आंट्स हैं, अंकल हैं, बहुत सारे लोग with whom I enjoy and I have fun. But then I'm not close to everyone. Close in sense that I share my feelings with them. शायद इसी वजह से मेरी ये डायरी लिखने की आदत शुरू हुई. और it must have given her a relaxation, a peace of mind, because now she was able to come out with her problems, happiness, whatever it is. कहती है ये मेरी एक ऐसी दोस्त है जिसे मैंने हमेशा इमेजिन किया है. मैं बहुत सारे फैक्ट्स नहीं इकट्ठा करना चाहती डायरी में, क्योंकि ये मेरी दोस्त है, तो मैं एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज तरीके से इसमें लिखना चाहती हूं. और ऑफ कोर्स दोस्त का नाम होता है, और मेरी इस दोस्त का नाम है किटी. शायद अगर मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूं अपनी डायरी में तो आप समझ नहीं पाएंगे. सो दैट्स व्हाट एनी सेज, दैट फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ स्केच अबाउट माई लाइफ. क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, ताकि आप रिलेट कर पाए कि मैं कैसी लड़की हूं. बिकॉज व्हेन पीपल आर गोइंग टू रीड माई डायरी दे शुड हैव अ कनेक्शन. शी टॉक्स अबाउट हर फैमिली. मेरे पापा बहुत ही अडोरेबल फादर हैं. उन्होंने मेरी मम्मा से शादी तब की थी when he was matured enough. He was 36 years old and my mom was 25. उसकी एक बड़ी दीदी है जो उससे 3 साल बड़ी है, मार्गरेट. फ्रैंकफर्ट जर्मनी में उसकी पैदाइश हुई 1926 में. एंड देन एनी वॉज बॉर्न. शी वॉज बॉर्न ऑन जून 1929. 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी. जॉब के पर्पस से, ग्रोथ के पर्पस से उसके फादर हॉलैंड चले गए, एंड इवन दी मदर. सो दे बोथ द सिस्टर मार्गरेट एंड एनी, दे हैड टू लिव विद देयर ग्रैनी. और बहुत ही लकी होते हैं जो दादी माँ और दादू के साथ रहते हैं.
शी सेज कुछ टाइम के बाद मेरी सिस्टर मेरे पेरेंट्स के पास चली गई इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड देन नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आई ऑल्सो वेंट टू माई पेरेंट्स. She says, me and my sister Margaret, we were living with our grandparents. Granny, दादी माँ. बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बचपन बिताने का मौका मिलता है. सोचिए, कमेंट जरूर करिएगा, आर यू दैट लकी और नॉट. बट मार्गरेट दिसंबर के मंथ में अपने पेरेंट्स के पास चली गई एंड सब्सिक्वेंटली फेब्रुअरी में एनी भी पहुंच गई. शी बिलीव्स कि शायद मैं बर्थडे गिफ्ट की तरह अपनी दीदी के पास पहुंची. मॉन्टेसरी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. और बहुत क्लोज थी वो अपने सारे टीचर्स के. लाइकवाइज इस मॉन्टेसरी स्कूल में भी एक टीचर थी, मिसेस कपरस, द हेड मिस्ट्रेस, एंड शी वाज वेरी क्लोज टू हर टीचर. दे बोथ हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड बट लाइफ में कई सारे ट्विस्टर टर्न आते हैं. शी सेज 1941 में मेरी दादी माँ बीमार हो गई. उनका ऑपरेशन हुआ एंड वी कुडंट सेलिब्रेट माई बर्थडे विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. अनफॉर्चुनेटली मेरी दादी माँ मर गई 1942 में. आई कांट टेल यू फ्रेंड्स हाउ मच डू आई मिस माई ग्रैंड माँ. With the passage of time, I've started loving her more, and she says, मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में was slightly grand because we couldn't celebrate the last year's birthday. I lit a candle. अपनी दादी माँ की याद में मैंने अपने बर्थडे पर एक कैंडल भी जलाए. We all 4 of us are happy. And अब मैं बात करती हूं आज के प्रेजेंट डेट की जो 20 जून 1942 है. मुझे नहीं पता कि आप कैसे रिलेट करेंगे बट ये डायरी मेरे जीवन का हिस्सा है. नाउ शी इज गोइंग टू हर क्लासरूम सेशन. क्लासरूम चल रहा है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, ऑल दी फ्रेंड्स, बिकॉज एग्जाम रिजल्ट्स. इमेजिन करिए अभी बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाले हैं, जब खत्म हो जाएंगे और आप इंजॉय करेंगे, बट देन व्हेन इट इज टाइम फॉर रिजल्ट्स, टिक 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 टिक. The same situation was with Annie Frank and all her friends. What does she says? कि टीचर्स की मीटिंग होने वाली है. टीचर्स आर इन मीटिंग, दे आर डिसाइडिंग किसको रखना है इस फॉर्म में और किसको नहीं. सारी की सारी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आप पास हो जाओगे, तू नहीं होगा. सो दे आर मेकिंग बेट्स. जीएन और मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा करती थी. वी आर लाफिंग ऑन दोज सिली बॉयज जो अपनी सारी सेविंग को बेट्स पे लगा रहे हैं. इनफैक्ट और ये कह रहे हैं तू पास हो जाएगा, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगी. लाइक सो दे आर मेनी डमीज. शी बिलीव्स कि बहुत सारे बच्चों को फेल हो जाना चाहिए, बट देन टीचर्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. पता नहीं वो क्या करते हैं. मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूं ना अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए. हाँ, बस थोड़ा सा एक फैक्टर जो डाउटफुल है वो है मैथ्स. बट देन आई नो आई विल मेक अप एंड माई फ्रेंड्स विल ऑल्सो. मैं अपने टीचर्स के साथ, मेरी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है. दैट्स व्हाट एनी सेज. शी सेज मिस्टर कीसिंग एक टीचर हैं जो शायद मेरी बात करने की हैबिट को पसंद नहीं करते. एंड बिलीव मी, आई हैव बीन पनिश्ड मेनी अ टाइम्स. उन्होंने मुझे कई बार क्लास में वार्निंग दी, एक्स्ट्रा होमवर्क्स भी दिए. और जानते हैं दोस्तों, उन्होंने मुझे किस टॉपिक पर लिखने को दिया? अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स? क्या लिखूंगी मैं इस चैटर बॉक्स पर? बट ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं नोटबुक पे लिखूंगी वंस आई रीच बैक होम. शाम को मैंने होमवर्क फिनिश किया एंड देन आई स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर कि मैं चैटर बॉक्स जैसे ऐसे पे क्या लिखूं. और मेरे टीचर ने स्पेसिफिकली ये इसलिए दिया था सो दैट आई शुड रियलाइज माई मिस्टेक, दैट आई शुड स्टॉप टॉकिंग. बट देन मैं सुधरने वाली नहीं थी. बहुत सोचा एंड आई केम अप विथ 3 पेजेस एसेज. क्या लिखा मैंने? जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं आप? मैंने उन्हें लिखा ऐसे में कि बातें करना तो एक बच्चे का कर्तव्य है. आई मीन इट्स अ ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट. कोशिश करूंगी कंट्रोल करने की, बट प्रॉमिस नहीं करती बिकॉज आई हैव इनहेरिटेड दैट क्वालिटी फ्रॉम माई मॉम. और जो चीज खून में है बदलू कैसे? एंड I'm sorry, I can't do anything about it. मिस्टर कीसिंग बहुत हंसे मेरी इस ऐसे को पढ़ने के बाद.
But then उन्होंने दूसरा ऐसे फिर दे दिया because I was continuously talking. It was supposed to be an incorrigible chatterbox, means something that cannot be corrected, जो सही नहीं किया जा सकता. मैंने वो भी लिख दिया. Yes, I'm smart enough. But then, this time he came up with a very unique topic. He said, write down an essay on quack quack. Students started laughing. What to do? I also started laughing and roaring. मेरी सारी, genuinely बोलूं तो मेरी सारी creativity exhaust हो चुकी थी. Now what? What should I write? But then my friend came to my rescue. She offered me to help. She's good in writing poetry, so she said, ठीक है चल. I would help you in writing a poetry on this topic, quack quack. उसकी मदद से मैंने poem finish की. Believe me, it turned out to be a beautiful poem. क्या स्टोरी थी उसका? Let's understand. एक मदर डकलिंग थी, एक फादर स्वॉन थे और उनके 3 बेबी डकलिंग्स. पापा ने अपने बच्चों को he bit them to death. क्यों? क्योंकि वो बहुत करा करते थे. Luckily, ये जोक तो मैंने मिस्टर कीसिंग पे बनाया था, but then he took it very sportingly. He took it very lightly and he laughed out loud when I actually read that, or maybe he must have read that poem. He added his own comments to it as well. और उसके बाद से शायद he had understood that मेरी पढ़ाई affect नहीं हो रही है. I am equally creative and he stopped giving me any more punishments like this. With this, that extract of Annie Frank's life comes to an end, and we come to an end of the chapter from the diary of Annie Frank. But what does this actually tells us about teacher? Mr. Keesing amusingly took the punishments, took the essays written by her, and it was all for the welfare of the child. But when he got to understand that it was not affecting her studies, he came to a stop. Thank you so much, my lovely children. Keep sharing and tell others to subscribe my channel, so that, again, I'm telling you the same thing, it motivates me. It gives me that zeal and energy to come again with the same vibrance, and my team as well. Take care. See you soon in day 6 session. Bye bye.